Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering all the current affairs related to indices and rankings for the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination 2026. So we'll just be doing the most important ones here because the examination is just a day away. So I'll only be covering the most important ones which are the most likely to be asked in this video. So the first one is जनवरी का है इंडियन सिटीज़ एयर क्वालिटी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम रिस्पायरर्स एटलस AQ प्लेटफॉर्म. उसमें वाराणसी हैज़ इमर्ज्ड एज अ फ्रंट रनर विद अ रिमार्केबल 36% डिक्रीज इन द पार्टिकुलेट मैटर 2.5 फॉलोड बाय मोरादाबाद एंड कानपुर. ठीक है, तो फर्स्ट कौन है? वाराणसी, which has reduced the particulate matter by 2.5 by 76%. Next, Union Minister of Commerce and Industry released the logistics ease across different states leads 2024 report in New Delhi. It evaluates logistics performance across 4 key pillars: logistics infrastructure, logistics services, operating and regulatory environment and the newly introduced sustainable logistics. ठीक है, तो 4 कैटेगरीज हैं: logistics infrastructure, logistics services, operating and regulatory environment and sustainable logistics. ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग released inaugural fiscal health index 2025 in New Delhi. So basically जो fiscal health index है, it assesses the fiscal health of 18 major states of India as per the 2022-23 fiscal year, and it has also identified areas for improvement and promotes best practices across different states. ठीक है, so according to this report, Odisha has topped the inaugural edition of the Niti Aayog's Fiscal Health Index 2025. इसमें 5 major sub indices हैं. First is quality of expenditure, then we have revenue mobilization, fiscal prudence, debt index और debt sustainability. ठीक है, तो सारे स्टेट्स को रैंक करते हैं बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हो गया, उसके बाद फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी. फर्स्ट आया है ओडिशा, देन सेकंड छत्तीसगढ़ एंड थर्ड गोवा. ठीक है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 कौन रिलीज करता है? नीति आयोग. दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क सरपासेस 1000 किलोमीटर्स, thus becoming world's third largest metro network spanning over 1000 kilometers across 11 states and 23 cities. It has surpassed Japan. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स सेकेंड ग्लोबली आफ्टर द US in terms of cyber attacks in 2024 according to CloudSec, a global intelligence platform. Though India ranks second in global cyber attacks. ठीक है, QS World Futures Skills Index 2025, India ranked 25th. The United States comes first with a 100 score, followed by UK, Germany and Australia. ठीक है, तो स्किल्स में हमारा अभी 25th पे है इंडिया. 2025 से लर्न कर सकते हो आप, स्किल्स में 25th पे ही है. Then the 20th edition of the Global Risks Report 2025 reveals an increasingly fractured global landscape where escalating geopolitical, environmental, societal and technological challenges threaten the stability and progress. ठीक है, this edition presents the findings of the Global Risks Perception Survey 2024-25 which captures insights from 900 experts. इसमें ये सब काम का नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन करता है पब्लिश, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है. नेक्स्ट, इंडियाज रैंकिंग हैज़ ड्रॉप्ड बाय 5 points to 85 दिस ईयर in Henley Passport Index released by citizenship advisory firm Henley and Partners. ठीक है, Singapore has reclaimed its position at the top of the quarterly ranking and Japan is second in the ranking.
India has reached a significant milestone of surpassing 100 gigawatts of installed solar power capacity. An ambitious target of 500 gigawatt of non-fossil fuel-based energy capacity of 2030 by 2030 was set by Prime Minister Narendra Modi. तो अभी हमारा 100 गीगावाट सरपास हो गया है, whereas the target is 500 gigawatts का. Then the population-based cancer registry report 2014-2016 released by the Nizam's Institute of Medical Sciences NIMS under the National Cancer Registry Program NCRP has revealed alarming cancer trends in Hyderabad. ठीक है, तो इसमें है कि the city has recorded the highest breast cancer incidence rate in India with an age adjusted rate of 48 per lakh women. अच्छा, तो नाम क्या है? PBCR रिपोर्ट, पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री, और NIMS ने निकाला है. ठीक है. India ranked 96 out of 180 countries in the Corruption Perception Index report for 2024 as its overall score dropped a point to 38 according to Transparency International report released. ठीक है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और हमारा रैंक क्या है? 96 है उसमें. डेनमार्क टॉप्ड द लिस्ट ऑफ बीइंग द लीस्ट करप्ट नेशन फॉलोड बाय फिनलैंड एंड सिंगापुर. According to a new climate risk index report published by German Watch, India ranks 6th among the top 10 countries most affected by extreme weather events over the last 3 decades from 93 to 2023. Dominica, China, Honduras, Myanmar and Italy are ranked ahead of India. ठीक है, तो इंडिया पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट का, and according to the climate risk index we rank 6th amongst the top 10 most affected countries. और फर्स्ट कौन सा है? डोमिनिका, सेकंड चाइना, देन हॉन्डुरास, थर्ड है, फोर्थ म्यांमार, फिफ्थ इटली. ठीक है. नेक्स्ट, हुरन ग्लोबल रिच इंडेक्स लिस्ट 2025. इलॉन मस्क हैज टॉप्ड अगेन फॉलोड बाय, और बाकी जो इंडियंस कौन से हैं इस लिस्ट में? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रोशनी नाडर are among the richest in India, and India ranks third with 284 billionaires followed by UK, Germany and Switzerland. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट. नेक्स्ट है, हाँ, दिस इज स्टिल इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. सो इंडिया हैज रैंक्ड 118th in the World Happiness Report published by Wellbeing Research Center at the University of Oxford in collaboration with Gallup, the United Nations Sustainable Development Solutions Network and an independent editorial board. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है? फिनलैंड, देन वी हैव डेनमार्क और आइसलैंड. पाकिस्तान इज़ बेटर देन अस. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस पाकिस्तान 109th पोजीशन पे है, whereas India is at 118th. And Afghanistan ranks the lowest at 147. Next, according to the latest report by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Ukraine has emerged as the leading global arms importer, accounting for nearly 8.8% of the total arms imports during the period from 2020 to 2024. तो वहाँ रशिया के साथ उनका वॉर चल रहा है, तो naturally they are the largest arms importer in the world अभी. ये नाम याद रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है. ठीक है. नेक्स्ट, 7th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 बाय स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ Air. अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट 13 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आर लोकेटेड इन इंडिया. ठीक है, तो इसका नाम क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय स्विस एयर. ठीक है, स्विस एयर है, नहीं, आई एम सॉरी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, और कंपनी का नाम है IQ Air. स्विस कंपनी है वो, एंड कंपनी का नाम है IQ Air. एंड 13 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट 20 पोल्यूटेड कंट्री सिटीज़ आर इन इंडिया. मेघालय में एक सिटी है बिरनी हाट.
ठीक है, मेघालय असम बॉर्डर पे है। इट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड और वहाँ का एनुअल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसंट्रेशन इज़ अराउंड 128.2 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बस आप नाम याद रखना, बिरनी हाट है मेघालय में। दैट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड city in the whole world. Next, the 12th edition Global Terrorism Index GTI 2025 was published by the Institute of Economics and Peace and it ranked India at 14th. Top 3 कौन से हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में? बुर्किना फासो, पाकिस्तान एंड सीरिया। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स और रिपोर्ट, साहिल रीजन होता है अफ्रीका में, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड टू हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में साहिल रीजन ऑफ अफ्रीका में है। इसमें ये नाम याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को का रिपोर्ट पब्लिश वही करता है। नेक्स्ट है ये IGR 2025 initiated by Tata Trusts and supported by several cities, civil society organizations and data partners. The country's only ranking of states on the delivery of justice tracked the performance of states across 4 areas: police, judiciary, prisons and legal aid. ठीक है, Karnataka is the only state that met quotas in both police and judiciary. Bihar has the highest share of women in state police. ये आप याद रखिएगा कि कर्नाटका इज़ द ओनली वन विच हैज़ मेट द कोटास, तो उनका दे हैव अ डिसेंट लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम उनका बढ़िया है। और बिहार में हाईएस्ट शेयर ऑफ वुमेन इन स्टेट पुलिस है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट एनुअल स्पेंडिंग ऑन प्रिजनर्स एंड यूपी ऑल्सो हैज़ द मोस्ट ओवरक्राउडेड प्रिजन्स। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ लॉन्च्ड द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स टू लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एम्पावर ग्रास रूट्स गवर्नेंस। गुजरात leads in this respect with nearly 346 ग्राम पंचायत as front runners. तो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले तो अचीवर ग्राम पंचायत हैं, उनका स्कोर विल बी मोर देन 90. देन वी हैव फ्रंट रनर्स, देन परफॉर्मर्स, एस्पिरेंट्स एंड बिगिनर्स। अचीवर्स में ज़्यादा कुछ कोई भी नहीं है, बट फ्रंट रनर्स में गुजरात हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत फ्रॉम द फ्रंट रनर कैटेगरी आर इन तेलंगाना। ठीक है, किसकी इंडेक्स है ये? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, Indian Institute of Science has secured the top position in the latest Times Higher Education Asia Rankings 2025, released on April 23rd. IISc is ranked 38th in the list. ठीक है, ये जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग्स होती है ना, इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग्स आर दैट ऑफ NIRF। ठीक है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं एग्जाम्स में, सो वील लुक एट दैट वंस फॉर। हाँ, ये रहा NIRF रैंकिंग्स हैं। इसमें CBSE के KVS वगैरह एग्ज़ाम्स में दे हैव आस्क्ड कि लॉ में विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड, सो देयरफॉर वी शुड जस्ट हैव अ लुक सी, थोड़ा सा ग्लास करके जाना चाहिए इसको। तो सबसे पहले जो ओवरऑल कैटेगरीज में द फर्स्ट कॉलेज वाज IIT मद्रास। ठीक है, और विद रैंक फर्स्ट, फिर IISc बेंगलुरु है और थर्ड है IIT बॉम्बे। ये ओवरऑल कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की है, उसमें सबसे पहले IISc बेंगलुरु आता है, देन JNU आता है न्यू दिल्ली का, और फिर आता है मणिपाल अकेडमी।
ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के टर्म में। ओवरऑल किस में क्या आएगा, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे। थर्ड क्या है कॉलेजेस की कैटेगरी में, सो द फर्स्ट वन विल बी हिंदू कॉलेज, देन वी हैव मिरांडा हाउस और थर्ड है हंसराज कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के कैटेगरी, उसमें फर्स्ट है आईआईएससी बेंगलुरु, देन वी हैव आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी दिल्ली। इनोवेशन इंस्टीट्यूट्स में पहले क्या है, आईआईटी मद्रास है, देन आईआईटी बॉम्बे एंड देन बेंगलुरु है, आईआईएससी बेंगलुरु। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में इग्नू आएगा पहले, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, देन वी हैव द कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एंड यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट स्किल यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट वी हैव सिम्बायसिस पुणे, देन वी हैव सिम्बायसिस इंदौर एंड देन श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल। नेक्स्ट है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उसमें सबसे पहले है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, बस फर्स्ट 3 देख के जाएंगे हम लोग। सबसे पहले कोलकाता का है, फिर चेन्नई का है, देन चंडीगढ़ की है। देन SDG इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं सबसे अच्छे, IIT मद्रास, देन वी हैव IARI न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली, एंड द थर्ड वन इज जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। इंजीनियरिंग के लिए IIT मद्रास, देन IIT दिल्ली और फिर IIT बॉम्बे। मैनेजमेंट के लिए IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर एंड देन IIM कोझिकोड। फार्मेसी के लिए जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, बिट्स पिलानी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मेडिकल में एम्स दिल्ली, देन PGMI PGIMER चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, एंड देन द थर्ड वन इज CMC वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ठीक है, डेंटल में क्या है, एम्स न्यू दिल्ली है, फिर है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली। लॉ में है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो इस पे क्वेश्चन आया था, या तो KVS में था या EMRS में था, कि लॉ में विच यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फर्स्ट। ठीक है, तो उसका क्या आंसर होगा, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में कौन सा है, IIT रुड़की, देन वी हैव NIT कैलिकट और नेक्स्ट थर्ड क्या है, IIT खड़गपुर। फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में IARI न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, देन वी हैव ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल एंड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फ्रॉम लुधियाना। ठीक है, तो ये सारे यू शुड थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, बिकॉज दे माइट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो टाइम्स के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना NIRF रैंकिंग्स इम्पोर्टेंट है। देन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स latest study reported that India stands as the 5th biggest military spender in the world in 2024. In 2024, the world's top military spenders were USA, which accounted for 37% of worldwide military spending, and China, which accounted for nearly 12% of the global military budget. ठीक है, तो क्या क्या रैंकिंग्स है, फर्स्ट USA, फिर चाइना है, फिर रशिया, देन वी हैव जर्मनी और नेक्स्ट क्या है, इंडिया 5th। A new report from the Himalayan Cleanup 2024 shows that over 70% of the plastic waste in the Indian Himalayas is non-recyclable, with single-use food and beverage packing being the dominant source of pollution. The maternal, हाँ ये important रहेगा, maternal mortality ratio has declined by 37 points from 130 per lakh live births in 2014 to 93. The statement mentioned, citing the Sample Registration Survey, Sample Registration System Report 2021,
रिलीज बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितना हो गया हमारा अभी 93 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स। तो अगर 1 लाख लाइव बर्ड्स होंगे इंडिया में तो 93 वुमेन विल अनफॉर्चुनेटली लूज देयर लाइव्स। ठीक है, पहले 130 हो जाता था डेथ। किसकी रिपोर्ट है? सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट्स रिलीज बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। India ranked 130th in the Human Development Index 2025 which was released in 2025। मतलब वैसे ये 2023 का डेटा है बट इट वाज रिलीज्ड इन 2025। ठीक है, तो हम लोग क्या रैंक क्या है 130। और किस किस इंडिकेटर पे इस पे रहता है, कैटेगराइज करते हैं इसमें। फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, देन वी हैव एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड थर्ड है ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, सो दीज आर द 3 क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द रैंक्स। ठीक है, तो इंडिया का रैंक है 130 एंड वी लाई इन मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं हम लोग, तो 130। ठीक है, किसने रिलीज करा है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूएनडीपी रिलीज करता है। Iceland is the one which has topped, followed by Norway and Switzerland। 193 कंट्रीज में से 130 आया है इंडिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें इंडिया का रैंक आया है 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, पहले 2024 में 159 था रैंक, सो वी हैव इम्प्रूव्ड थोड़ा सा, है ना। नॉर्वे हैज़ अचीव द फर्स्ट रैंक इन दिस इंडेक्स। ठीक है, इंडिया रैंक्ड 10th in the climate change performance index 2025। it is published by German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network International। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में वी हैव रैंक्ड 10th और इसमें फर्स्ट 3 जो पोजीशंस हैं उनको वेकेंट रखा है, क्योंकि नो वन इज़ डूइंग एज गुड। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए इतना बढ़िया नहीं कर रहा है कोई भी कंट्री, दैट इज़ वाई द फर्स्ट 3 पोजीशंस हैव बीन केप्ट वेकेंट एंड इंडिया रैंक्स 10th इन दिस इंडेक्स। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ रैंक्ड 131 आउट ऑफ 148 countries, slipping 2 places from its position last year in the World Economic Forum जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, सो इंडिया का रैंक क्या है 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। 4 की डायमेंशंस देखते हैं वो लोग। देर आर 4 की क्राइटेरियाज फॉर डिटरमाइनिंग द रैंकिंग्स। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू वुमेन। देन द सेकेंड वन इज एजुकेशनल अटेनमेंट। थर्ड क्या है? हेल्थ एंड सर्वाइवल। एंड द फोर्थ वन इज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसमें बस वही देख लो, पैसे होने चाहिए वुमेन के पास, एजुकेशन भी होनी चाहिए, हेल्थ भी बढ़िया होनी चाहिए एंड शी शुड हैव अ वॉइस, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री क्या है इसमें? आइसलैंड, देन वी हैव फिनलैंड एंड देन नॉर्वे। और इंडिया का रैंक है 131। नेक्स्ट है हुरन, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट सी इट वंस। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, इंडिया हैज़ रैंक्ड 3rd इन दिस इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि फिनटेक और गेमिंग कंपनीज यूनिकॉर्न्स काफ़ी सारे इंडिया में दे हैव कम अप, सो दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ रैंक्ड 3rd इन दिस इंडेक्स। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 report for 2022 and 2023-24, ranking states and union territories on school education. This is important
चंडीगढ़ टॉप्ड द लिस्ट वाइल मेघालय वाज एट द बॉटम। ठीक है, तो क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.2 रिलीज़ किया है 2022-23 और 23-24 का, which basically ranks states and union territories based upon school education. फर्स्ट कौन सा स्टेट आया है, सॉरी यूनियन टेरिटरी आया है चंडीगढ़, एंड मेघालय हैज़ gotten the bottom rank. Now India has been ranked 71st on Global Energy Transition Index released by World Economic Forum. ठीक है, सो 2024 में हमारा रैंक था 63rd, वेराज अभी क्या हो गया है 71st। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रहे, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, स्वीडन हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ 118 कंट्रीज फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड इन द टॉप 5। नेक्स्ट है, रिसेंटली the Organization for Economic Cooperation and Development released the Global Drought Outlook report, and according to that 40% of the world's land area faces increasingly frequent and severe droughts। ठीक है, तो किसने निकाला है, OECD ने निकाला है ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट, और 40% पूरा वर्ल्ड का लैंड एरिया फेसेस सिवियर ड्रॉट्स। नेक्स्ट है, India ranked second after Nigeria in the number of unvaccinated or zero-dose children in 2023, according to a new Lancet study based on global burden of disease data. Not very important, but ठीक है, एक बार पढ़ सकते हैं। Ministry of Statistics and Program Implementation has announced that India will conduct its first comprehensive household income survey in 2025-26। ठीक है, फिर क्या है, 10th edition of the Global Peace Index 2025 was released by the Institute for Economics and Peace। ठीक है, India ranks 115th globally with a GPI score of 2.29, a 0.58% improvement in its level of peacefulness over the past year. Iceland continues to lead. Iceland is followed by Austria, New Zealand and स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2025 का, इट इज़ रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 115th, और GPI स्कोर है 2.229, एंड देयर इज अ 0.58% इम्प्रूवमेंट इन इट्स लेवल ऑफ पीसफुलनेस ओवर द पास्ट ईयर। ठीक है, तो काफ़ी पीछे है रैंकिंग, 115 है। फर्स्ट क्या, आइसलैंड है एज यूजुअल, वही नॉर्डिक कंट्रीज़ है, उनका ही बढ़िया रहता है सब कुछ। नाउ अकॉर्डिंग टू द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क 10th and the latest sustainable development report, India ranks 99th on the 2025 SDG index with a score of 67, while China ranks 49th with 74.4 and the US 44th with 75.2 points। ठीक है, तो बस रैंक याद रखो, पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR UNSDSN ने निकाला है, एंड इंडिया रैंक्स 99th ईयर। ठीक है, WMO का रिपोर्ट आया है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट, एंड अकॉर्डिंग टू इट India's eastern and western coastal regions are witnessing faster sea level rise than the global average, thus posing an increasing threat to livelihood and infrastructure. Next, Kerala has been ranked the top performing state in the management effectiveness evaluation of national parks and protected areas for the cycle 2020-2025 conducted by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, लद्दाख में पुअर आया है। देखो, केरला हैज़ बीन रैंक्ड द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। जाओ,
Ker- um, सो मैनेजमेंट इफेक्टिव evaluation कौन कंडक्ट करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कंडक्ट्स दिस। और केरला हैज़ कम फर्स्ट। लद्दाख का सबसे पुअर है मैनेजमेंट, ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क एंड दचिगम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क ऑफ केरला एंड दचिगम नेशनल पार्क ऑफ जम्मू कश्मीर have scored the highest amongst the protected areas. Next है QS Best Student Cities Ranking 2026. Delhi has been named the most affordable student city in the world. ठीक है, and it has emerged as the highest ranked Indian city at 98th place globally. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो जनवरी में हमने अभी पढ़ा था करंट अफेयर्स, उसमें 85th रैंक थी, पर अभी जो 2025 वाला है उसमें 77th रैंक आ गई है, ठीक है। So Singapore's passport remains the most powerful. India's maternal mortality ratio वही 93 per 1 lakh live births है according to Registrar General of India. Next है second edition of the Northeast Region Districts Sustainable Development Goals Index was released by Niti Aayog. Mizoram has the highest scoring district in the entire Northeast region. ठीक है, वर्ल्ड बैंक रैंक्स इंडिया फोर्थ अमंग्स द वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटीज। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने एक रिसेंटली रिपोर्ट निकाली थी अकॉर्डिंग टू विच इंडिया इज़ द फोर्थ मोस्ट इक्वल सोसाइटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इट लाइज बिहाइंड स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस। इन्होंने बेसिकली दे हैड डन दिस सर्वे बेस्ड अपॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट द इनकम, दैट इज़ वाई इंडिया को फोर्थ मोस्ट इक्वल सोसाइटी मान लिया है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है इंडिया में। नेक्स्ट, पीएम मोदी हैज़ emerged as the world's most popular democratic leader with a 75% approval rating, ठीक है। Now Punjab Agricultural University Ludhiana secured 93rd rank in agricultural sciences in the EduRank 2025 list of the world's top 100 agricultural institutes, ठीक है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना का 93rd रैंक आया है और IARI न्यू दिल्ली का 47th रैंक आया है, ठीक है। नाम क्या है? एड्यू रैंक 2025 लिस्ट टॉप 100 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस में। RBI is informed that the financial inclusion index of the for financial year 2025 has improved and stands at 67% as compared to 64.2% for financial year 2024. Next है the state of food security and nutrition in the world. SOFI 2025 report was released, and according to it, the global hunger has decreased to an estimated 8.2% in 2024 from the 2022 levels. Next है India's Electric Mobility Index 2024 launched by Niti Aayog, a first of its kind benchmarking framework that scores all states and union territories out of 100 based on their progress in e-mobility adoption, infrastructure readiness, and innovation efforts. Delhi, Maharashtra, and Chandigarh emerged as top 3 states overall in electric mobility readiness and innovation. ठीक है, कौन से हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़। कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, ठीक है। कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है रिपोर्ट। देर आर बेसिकली 16 इंडिकेटर्स बेस्ड अपॉन विच दे हैव मेड दिस रिपोर्ट। उसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा इन इंडिकेटर्स को। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, देन वी हैव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक व्हीकल रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है
Bengaluru has secured the 26th rank in the Global Artificial Intelligence City Index 2025, emerging as India's top AI, R&D and data center hub, published by market research firm Counterpoint Research. So first कौन सा है? Singapore, second Seoul, third Beijing, और Bengaluru has come 26th year. Next, Union Health Ministry launched Shresth State Health Regulatory Excellence Index. It is India's first national framework to benchmark and strengthen state drug regulatory systems through transparent data-driven evaluation. ठीक है, ये this has been asked in the KVS NVS examinations conducted by CBSE. ठीक है, so that is important. Next, नाम क्या है? श्रेष्ठ है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने निकाला है फॉर रेगुलेटरी इंश्योरिंग और स्ट्रेंथनिंग द स्टेट ड्रग regulatory systems. Now, researchers from IIT Delhi and IIT Gandhinagar have come up with a district flood severity index. Patna turns out to be the number one on the index, followed by many districts in Indo-Gangetic Plain and in Assam. मैक्सिमम फ्लड्स कहाँ पे होते हैं? तिरुवनंतपुरम में होते हैं, बट इट इज़ नॉट इन द सीवियरिटी रैंकिंग्स. ठीक है, मोस्ट सीवियर फ्लड्स कहाँ पे होते हैं? पटना में. ठीक है, फिर अंबानी क्या लिखा है? दी अंबानी फैमिली हैज टॉप्ड द 2025 Barclays Private Clients Hurun in E. This is not important. Next is Smart City Index released by International Institute for Management Development. Swiss cities continue to dominate and Indian cities continue to be part of the global smart city movement, but they remain outside the top 20. ठीक है, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन निकालता है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट. इसमें इंडिया में फर्स्ट है दिल्ली, वो 104th पोजीशन पे आया है. सेकेंड मुंबई 106th पोजीशन पे आया है. ठीक है, they basically rank on based on 5 parameters. First is health and safety, then we have mobility, activities, opportunities and governance. ठीक है, women employment rate in India according to the periodic labor force survey shows that women's employment rate in India nearly doubled from 22% in 2017 to 40.3% in 23-24. And female unemployment fell from 5.6 to 3.2%. ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग वुमेन कितने एम्प्लॉयड है? 40.3% ऑफ द इंडियन वुमेन आर एम्प्लॉयड. ठीक है, देन नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 released by the National Commission for Women. According to it, Kohima, Visakhapatnam, Bhubaneswar, Aizawl, Gangtok, Itanagar and Mumbai have emerged as the safest cities in the country for women. और lowest सबसे कम सेफ cities कौन से? पटना, जयपुर, फरीदाबाद एंड दिल्ली. ठीक है, 16th Lion Population Estimation Report 2025 revealed that India's Asiatic lion population has risen from 674 to 891 in 2025. Financial Times Masters in Management Rankings 2025 के अकॉर्डिंग 3 इंस्टीट्यूशन है. यूनिवर्सिटी ऑफ ये अच्छा IIM बेंगलोर भी है. यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन स्विट्जरलैंड, HEC Paris and IIM Bangalore leads amongst Indian B schools with a global rank of 28. अच्छा, ये गलत बोला है मैंने अभी. फर्स्ट रैंक किसको मिला है? यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट गैलन स्विट्जरलैंड. सेकेंड रैंक मिला है HEC पेरिस को और थर्ड है इंसीड फ्रांस. IIM बैंगलोर हैज़ कम 28th. ठीक है, क्या है इस रैंकिंग का नाम? फाइनेंशियल टाइम मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग्स. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025. इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट करता है and India has slipped to the 63rd place in this ranking. ठीक है,
not very important for the examination. The 19th edition of Global Peace Index 2025 was released by the Institute for Economics and Peace, and India's received is ranked at 115th position और आइसलैंड फर्स्ट है. एशिया में सिंगापुर फर्स्ट है, जापान सेकेंड एंड थर्ड इज मलेशिया. एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट. On average, air pollution reduces the life expectancy of an Indian by 3.5 years, and Delhi NCR residents face the most severe impact, um, thus losing approximately 8.2 years of their life expectancy due to high pollution levels. Next, we have Union Education Minister Dharmendra Pradhan. He recently released the NIRF ranking framework, और इसको हमने अभी पढ़ा था, so you do not have to do this again. ठीक है. Infant mortality rate कितना है कंट्री का? It has touched a record low of 25, which is a sharp dip from 37.5% from sharp dip of 37.5% from 40 in 2023, according to the sample registration system report issued by Registrar General of India. ठीक है. तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है इंडिया का? 25. ठीक है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय WIPO, उसमें इंडिया का रैंक कितना था? 38 था आउट ऑफ 139 कंट्रीज. 2020 में 40th रैंक था. नेक्स्ट है इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम पब्लिश्ड बाय द हेरिटेज फाउंडेशन. अकॉर्डिंग टू इट, इंडिया इज रैंक्ड एट 128th ग्लोबली. ठीक है. क्या है? इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम. तो हमारे इंडिया में देयर इज रिलेटिवली लेस इकोनॉमिक फ्रीडम. सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में. फिर फर्स्ट फॉरेस्ट फोकस्ड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. It is also the first dedicated publication on forest accounting based upon the UN system of environmental economic accounts. सी फ्रेमवर्क होता है उसके अकॉर्डिंग. एंड टॉप स्टेट्स कौन से हैं? केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. देन वी हैव टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026. IISc बेंगलुरु टॉप्स इन इंडिया एज ऑक्सफोर्ड रिटेन्स ग्लोबल नंबर 1. अगेन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. NIRF इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिलीज़ किया था बाय कंसर्न वर्ल्ड लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ एंड IHFB. According to it, India ranks 102nd out of 123 countries under the theme. ठीक है. बस इतना ही. और थीम क्या थी इस वाले इंडेक्स की इस साल? 20 years of tracking progress, टाइम टू रिकमिट टू ज़ीरो हंगर. सबसे ज़्यादा हंगर कहाँ पे? सोमालिया में. Sustainable Trade Index 2025 was released jointly by the Heinrich Foundation Singapore and IMD Switzerland. It ranks United Kingdom as first and India 23rd globally. ठीक है. All India Synchronous Elephant Estimation 2025, it puts India's elephant population between 18,000 to 26,000. तो एवरेज कितना है? 22,000 का है. This has reduced from 2017 का figure which was around 27,000. ठीक है. कर्नाटका continues to host the largest number of elephants at 6,000. Henley passport index होता है ना, वही उसमें अभी हमने पढ़ा था इसका भी. 85th रैंक है, फिर 77 हो गई थी, फिर ऐसे ही है. नेक्स्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिलीजेस स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स फॉर नॉन कोल मिनरल्स. ठीक है. दिस इज बेसिकली अ परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट एंड रैंक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन देयर माइनिंग सेक्टर प्रिपेयर्डनेस एंड गवर्नेंस. तो 4 कैटेगरीज पे इन्होंने करा है इस इंडेक्स को बेस. First is auction performance, then we have operationalization of mines, then exploration efforts, और fourth क्या है? Sustainable mining practices.
तो मिनरल रिच स्टेट की रैंकिंग क्या है? सबसे पहले आता है एमपी, फिर राजस्थान, देन वी हैव गुजरात। मॉडरेट रिसोर्सेज स्टेट्स वालों में क्या रैंकिंग आई है? गोवा, देन वी हैव यूपी एंड असम। और लो एंडोमेंट स्टेट्स की रैंकिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट इज पंजाब, देन उत्तराखंड एंड देन वी हैव त्रिपुरा। तो माइनिंग रेडीनेस के स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग द मोस्ट माइनिंग रेडी state in the country right now is MP, then we have राजस्थान एंड गुजरात। और अगर मॉडरेट रिसोर्सेज वाले स्टेट्स देखें तो गोवा इज़ द मोस्ट माइनिंग रेडी एंड देन वी हैव यूपी एंड असम। और लो रिसोर्सेज लो एंडोमेंट वाले स्टेट्स में पंजाब इज़ द मोस्ट माइनिंग रेडी, देन वी हैव उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। ठीक है। फिर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पार्टी इंडेक्स 2025 report was released by UNDP and OPHI. According to this, India's poverty rate has fallen from 55.1% to 16.4%. Thus, India has been successful in lifting 414 million people out of poverty, multidimensional party. ठीक है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का देख लेते हैं। टॉप परफॉर्मर्स कौन से? नेदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क और इंडिया। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड लास्ट आउट ऑफ 104 कंट्रीज़। तो हमारी रैंक क्या आई है? 104, और लास्ट कंट्री आया है हमारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। ठीक है। नेक्स्ट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026। तो एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या है इंडिया का? 56.35% है। सो इट हैज़ रिजन फ्रॉम 54.8% इन 2025। ठीक है। नेक्स्ट है जर्मन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स वॉर्न्स ऑफ माउंटिंग टोल, पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच विच इज़ बॉर्न बेस्ड एनजीओ। इंडिया रैंक्स 9th amongst द मोस्ट क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज। ठीक है। डोमिनिका हैज़ टॉप्ड इन दिस इंडेक्स। अभी 10th था, इस वाले में 9th है। ठीक है। पहले वाला जो था उसमें 10th था, इसमें 9th है। देन गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF हैज़ रैंक्ड नंबर 1 cooperative in the world in ICA, International Cooperative Alliance World Cooperative Monitor 2025 at ICA CM50 कॉन्फ्रेंस दोहा कतर। ठीक है। तो फर्स्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड कौन सा आया है? GCMMF गुजरात का, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। और सेकंड कौन सा आया है? इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है। द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025, इंडिया fell 6 places to rank number 86 globally with an overall score of 0.49, thus marking a 1.7% decrease in 2025. फर्स्ट कौन सा है? डेनमार्क, देन वी हैव नॉर्वे एंड देन द थर्ड वन इज फिनलैंड। ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में इंडिया का रैंक क्या है? 86। फिर QS एशिया रैंकिंग्स, इट इज बीन रिलीज बाय क्वाक्रेली साइमंस। ग्लोबल टॉप रैंक्स डोमिनेटेड बाय हांगकांग, मेनलैंड चाइना एंड सिंगापुर। IIT दिल्ली का क्या सबसे बढ़िया रैंक आया है? 59th रैंक। ठीक है। इंडिया में Climate Change Performance Index 2026, published by German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network. India has ranked 23rd. पहले हमारा 10th रैंक आता था, पर अभी we have ranked 23rd in terms of climate change performance. ठीक है। First 3 positions are vacant because no country is doing enough to combat climate change, according to German Watch. ठीक है। 4 कैटेगरीज के बेसिस पे 4 क्या क्राइटेरिया है प्राइमरीली इसको डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, देन वी हैव द रीन्यूएबल एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। नेक्स्ट, इंडिया हैज emerged as the most represented country in the Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2026। ठीक है। फर्स्ट कौन सा आया है? MIT 57th आया है इंडिया से। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज
Chennai. India has secured the third position in the seventh edition of the Asia Power Index 2025. Okay, it is published by Australia-based Lowy Institute. AI competitiveness index है तो इंडिया हैज़ रैंक्ड थर्ड ग्लोबली अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का 2025 इंडेक्स. फर्स्ट और सेकंड कौन सा है? यूएसए एंड चाइना. हेनले पार्टनर्स एंड अल्फा जियो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट रिस्क रैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस रैंकिंग है, वो है 104th ग्लोबली. ठीक है. नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स, वो अभी पढ़ा था हमने. लोई इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया निकालता है ये. एंड इंडिया हैज़ रैंक्ड थर्ड. एंड द फर्स्ट वन कौन सा है एशिया में? यूएसए है एशिया में. ठीक है. यूएसए इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री इवन इन एशिया. ठीक है. नेक्स्ट है चाइना एंड थर्ड इज़ इंडिया. ठीक है. एंड वी हैव सरपास्ड जापान. Then IMF has officially recognized India's UPI as world's largest real-time retail payment system by transaction volume. UPI accounts for nearly 49% of all global real-time digital payments, far ahead of Brazil, Thailand and China. In Bloomberg's 2025 rankings, world's 25 richest families, only one Indian family, that is the Ambanis, have made the cut. World में सबसे richest family is the Walton family, who own the Walmart chain. ठीक है. So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.